بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسواق کے اندر امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے 7 ام المؤمنین کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، تو ان میں سے 7 کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ ان 7 امہات المؤمنین کا تذکرہ جو ہے پچھلے اسواق کے اندر ہو چکا۔ آج 8ویں جو بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ ہے۔ وہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو ہے نسب کے اعتبار سے وہ قریش میں سے بھی نہیں ہے اور جو ہے عدنان عرب میں سے بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو جو اچھی طرح سمجھا رکھا ہے اس بات کو بھی پہلے کہ قریش کسے کہتے ہیں اور عدنان عرب کسے کہتے ہیں۔ یہ بالکل اس کے بھی علاوہ الگ سے ہیں، یعنی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ اس سے پہلے جتنی بھی امہات المؤمنین کا تذکرہ اللہ کے رسول کی ہوا، ان میں سے جو ہے ہر بیوی کا تذکرہ اللہ کے رسول کے خاندان سے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ تھا اور کہیں نہ کہیں مل رہا تھا۔ یا تو قریش کے اندر تھا، 6 بیویاں اللہ کے رسول قریش کے اندر ہیں تو ان کا تذکرہ جو ہے آیا، یا جو قریش میں سے نہیں تھا تو قریش سے اوپر جو ہے عدنانی عرب جو ہے ان کے اندر تھا۔ یہ جو حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نسب جو ہے وہ دوسری طرف ہے، وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے نہیں مل رہا۔ جو ہم نے یہ پیچھے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، کئی اسباق سے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بیویاں ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول سے جڑ رہا ہے خاندان کے اندر، لیکن حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ جو ہے بالکل الگ ہے خاندان کے طور۔ تو ان کا نسب یہ ہے جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن خزیمہ۔ تو خزیمہ کا لقب جو مستلق تھا، جو ان کے اوپر پشت کے اندر آئے مستلق، تو اس لیے ان کا خاندان جو ہے بنو المستلق کہلایا۔ بنو المستلق کے اندر سے جو ہے حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ آتی ہے، ہم نے یہاں لکھ دیا بنو المستلق، وہ 8ویں نمبر کی بیوی ہیں یہ حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بنو المستلق کے اندر سے ہیں۔ ان کے پہلے شوہر جو ہے مصعب بن صفوان تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ 7 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، تو بنو المستلق جو ہے ایک بنو خزاعہ ایک بڑا قبیلہ تھا مدینے کا عرب کا، تو اسی کا ایک چھوٹا قبیلہ ہے بنو المستلق۔ تو قریش خاندان سے ان کے تعلق تھے، کفار مکہ سے، تو مکہ والے ان کو ابھارتے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خبر ہوئی، تو اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو بھیجا خبر لانے کے لیے کہ انہوں نے لڑنے کی تیاری کی ہے یا نہیں کری۔ تو جا کے معلوم کرا تمہارے انہوں نے لڑنے کی ساری تیاریاں کر رکھی تھی، تو انہوں نے خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آ کر، تو اللہ کے رسول نے ان سے لڑنے کی تیاریاں کی، اور اللہ کے رسول نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے ان سے لڑنے کے لیے نکلے۔ تو بنو المستلق جو ہے آگے جا کر ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا مریسی، تو اس لیے اس جنگ کو غزوہ مریسی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کنویں کے آس پاس جو ہے انہوں نے جا کر اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی تیاریاں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر نکلے اور انہیں معلوم چلا کہ بھئی اللہ کے رسول کا کافی بڑا لشکر ہے، ان کو روب طاری ہوا، تو ان کے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ جو بنو المستلق کے لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول سے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم لڑیں گے اور بعض لوگ کہنے لگے ہم نہیں لڑیں گے، واپس جا رہے ہیں۔ تو جو بنو المستلق کے جو سردار تھے وہ حارث تھے، جو جبیریہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ جو ہے اس قبیلے کے سردار تھے، اور جو ان کے شوہر ہیں مصعب بن صفوان، یہ بھی جو ہے یہ بھی سرداروں میں سے تھے۔ تو اب سسر اور داماد کے اندر اختلاف ہو گیا۔ مصعب بن صفوان کہنے لگے کہ ہم لڑیں گے، اور حارث بن جرار جو ہے وہ کہے ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر حارث بن جرار ایک اپنے جو ہے فوج کو لے کر وہاں سے چلے گئے، حارث بن جرار جو ہے وہاں سے بھاگ گئے اس لڑائی کو چھوڑ کر۔ مصعب بن صفوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی۔ جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے جو ہے تیر چلانے شروع کرے، اس فوج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تیروں کا جواب دیا اور جو ہے ان کو سب کو ہرا دیا، کیونکہ
इनकी ताकत पहले ही कम हो चुकी थी और आधी फौज पहले ही चली गई, इसलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत आसानी से इस कबीले को, इस लड़ाई को अल्लाह के रसूल ने बहुत आसानी से जीत लिया। इस गजबे को अल्लाह के रसूल ने बड़ी आसानी से फतह कर लिया। हुआ यह है कि जब ये कबीला आया और ये लड़ने के लिए आया बनु मुस्तलिक, तो अपने साथ बहुत सारे औरतें, बच्चे और उसके अलावा जो है बकरी भेड़ वगैरह सब जो है पूरा फौज और पूरी चीजें जो है लेकर आए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वार्निंग दी थी कि भाई आप जो है अपने साथ औरतों और बच्चों को मत लेकर आओ, तो जो हमसे नहीं लड़ेगा तो जीतने के बाद ही हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो लड़ने मैदान के अंदर आ गया, हम जीत गए, तो फिर जो है उस पर हमारा कब्जा है, फिर हम जो है उनके साथ इंसाफ के साथ जो है जो करना होगा हम करेंगे। तो क्योंकि औरतें भी आई थी और बच्चे भी आए थे, उसके अलावा काफी सारे लोग जो है लड़ने के लिए आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस गजबे को जीत लिया तो 100 घराने कैद हुए, बनु मुस्तलिक के जो है 100 घराने कैद हुए, तकरीबन उसके अंदर 700 आदमी थे। इस वाक़े को जो है शहीद ज़करिया साहब ने फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी लिखा हुआ है। तो जब ये जंग फतह हो गई और जीत लिया, अल्लाह के रसूल ने 100 घराने कैद होकर जो है आ गए और बहुत सारा गनीमत का माल भी, इसके अलावा जो है भेड़ बकरी वगैरह बहुत सारा गनीमत का माल आया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर आए तो उसके अंदर जब अल्लाह के रसूल ने माल गनीमत तकसीम किया, क्योंकि जो औरतें आई हैं वो बांदियां बन जाएंगी, जो बच्चे हैं गुलाम बन जाएंगे, मर्द जो है बच्चे जो है वो गुलाम बन जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फिर जो है गुलाम बांदी तकसीम करने शुरू कर दिए। तो हर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा भी जो है कैद होकर आई थी, जो 100 घराने कैद होकर आए। मुसाफा बिन सफवान तो मारा गया, हारिस बिन अबी ज़िरार जो थे ये पहले ही भाग गए थे जंग छोड़कर, पहले ही उन्होंने लड़ने का इरादा खत्म करके वहां चले गए। मुसाफा बिन सफवान जो है मारा गया और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है कैद होकर मदीने के अंदर आ गई। तो जब माली गनीमत तकसीम हुआ तो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु जो साहबी हैं उनके हिस्से में आई, क्योंकि ये जो सरदार की बेटी है ना, वो एक शहजादी है। बनु मुस्तलिक का जो पूरा कबीला था उसके अंदर सरदार की बेटी थी, गोया शहजादी थी जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा। तो जब जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु की गुलामी के अंदर आ गई तो उन्होंने रहना पसंद नहीं करा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी गुलामी के अंदर नहीं रह सकती। साबित बिन कैस, क्योंकि तेवर जो थे वो शहजादा ना थे ना, शहजादी थी पहले से, लेकिन अब जो गुलाम है बांदी है, लेकिन जब भी क्या है तेवर वही है। तो साबित बिन कैस से कहा मैं तुम्हारे साथ जो है रह नहीं सकती। उन्होंने कहा भाई रहने का क्या मतलब है, या हमारी बीवी थोड़ी नहीं है, बीवी कहे तो बात समझ में आती है, गुलाम है बांदी है आप, तो बांदी वो इख्तियार नहीं होता। जब भी मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मेरे साथ मुकातबत कर लें। उन्होंने कहा ठीक है। मुकातबत किसे कहते हैं? मुकातबत ये होता है कि कोई गुलाम या बांदी है वो अपने मालिक से एक रकम तय कर ले। मालिक जो है कह रहे आप मुझे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लागत दे दो, आप जो है आजाद हो जाओगी। इसको मुकातबत कहते हैं। जब वो पैसे लागत दे देगा तो आजाद हो जाएगा, पैसे नहीं लागत दिए तो वो आजाद नहीं होगा। इसको मुकातबत कहते हैं। तो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा हालांकि दूसरे मुल्क के अंदर है, बांदी है, लेकिन क्योंकि तेवर जो है उनके वही सरदारी वाले और शहजादी वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने मुकातबत तय कर ली। उन्होंने कहा कितने जो है आप पैसे लेंगे हमसे? तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं आपसे 9 औक़िया सोना लूंगा। एक बड़ी रकम होती थी उस वक्त की, बहुत ज्यादा रकम। तो जुबैर रज़ी अल्लाह ने कहा ठीक है। हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं, कंगाल थी, लेकिन क्योंकि क्या है तेवर उनके शहजादी वाले, तो वो गई। उन्होंने कहा भाई अल्लाह के रसूल के बारे में जुबैर रज़ी अल्लाह ने पहले भी सुन रखा था, बहुत ज्यादा जो है अल्लाह के रसूल देने वाले, वो ज्यादा सखी हैं, कोई मांग नहीं जाता, कभी उसको मना नहीं करते। तो जुबैर रज़ी अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल के पास गई और इस नियत से गई कि कुछ ना कुछ 9 औक़िया उन्होंने जो है मुकातबत तय करी है। 9 नहीं तो 2 4 कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसके अलावा जो है और उसे मैं मांग लूंगी या तो उधार ले लूंगी, और फिर जो है कुछ बाकी रहेगा उसे अपने घर जाकर वापस भेज दूंगी। तो जब जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आई और अपनी एक हारिस जो है अल्लाह के रसूल के सामने उन्होंने रखी, कहा कि आपको मालूम है जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो मुझे जो है मेरे ऊपर हालात गुजरे और मेरे एक बांदी बन गई, अब मुझे साबित बिन कैस ने 9 औक़िया सोने पर मुकातबत जो है मुझसे की है, आप जो मुझे कुछ पैसे दे दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुबैर रज़ी अल्लाह को 9 औक़िया सोना का जो है सारा का सारा अल्लाह के रसूल ने उन्हें दे दिया। जुबैर रज़ी अल्लाह ने बहुत ज्यादा खुश हुई, अल्लाह के रसूल के बारे में जो सुन रखा था उससे ज्यादा जो है उन्होंने अल्लाह के रसूल की सखावत देखी, अल्लाह के रसूल के अखलाक देखे, तो वो ज्यादा खुश हुई। गई और जाकर साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है
सारे पैसे दे दिए और आज़ाद हो गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास आई तो अल्लाह के रसूल ने इन्हें एक इख्तियार और दिया, कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे निकाह के अंदर आ सकती हैं। तो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन जो है अल्लाह के रसूल से निकाह के ऑफर को कबूल कर लिया और अल्लाह के रसूल के जो है निकाह के अंदर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा आ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती रही। जो हारिस थे इनके वालिद, जो जंग छोड़कर भाग गए थे, उन्हें मालूम चला कि मेरी बेटी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और उन्हें ये ख्याल था कि मेरी बेटी गुलाम बनकर और मेरी बेटी जो है बांदी बनकर रह रही है। तो हारिस बिन अबी ज़िरार जो है बहुत सारा माल लेकर मदीने आए अपने भाई के साथ और मदीने में आते आते जो है उनके पास 2 ऊँटनियाँ थी, बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती। तो उन्होंने वो 2 ऊँटनियाँ मदीने से पहले जो एक पहाड़ के पीछे छुपा दी, क्योंकि हम जो है अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हो सकता है सामने वाला कितने ही पैसे मांग ले, जब इन ऊँटनियों को देखा यही मांग लेगा, सब कुछ मांग ले, फिर हमारे जाने के लिए कोई सवारी हमारे पास नहीं रह जाएगी। तो हारिस बिन अबी ज़िरार ने वो दोनों ऊँटनियाँ मदीने से बाहर जो है एक पहाड़ी के पीछे छुपा दी और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि आप जो मेरी बेटी को आज़ाद कर दें, उसके बदले में जो है आपको जितना भी आप माल चाहें उतना ले लें, मैं आपको जो उतना माल दूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे आगे कोई बात नहीं करी और उनसे कहा कि जो आप 2 ऊँटनियाँ छुपा कर आए वो कहाँ हैं? कौन सी 2 ऊँटनी जो आप उस पहाड़ के पीछे छुपा कर आए, वो 2 ऊँटनियाँ कहाँ हैं? तो हारिस बिन अबी ज़िरार ने कहा कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, जैसा आप दावा करते हैं, क्योंकि उन 2 ऊँटनियों को मेरे अलावा कोई भी जो है नहीं जानता और आपको खबर हो गई, गोया कि अल्लाह के ताला ने जो है आपको उस ऊँटनियों की खबर दे दी। फिर हारिस बिन अबी ज़िरार भी जो मुसलमान हो गए। फिर अपनी बेटी ने कहा आप चलिए उन्हें, लेकिन वहां जाके मालूम चला कि भाई बांदी बनकर रह रही है, उनके ख्याल था। लेकिन जब मदीने आए तो मालूम चला कि जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है एक बड़ी जो है ओहदे पर गोया के उम्महातुल मोमिनीन का उनको लक़ब मिल गया, अल्लाह के रसूल की बीवी बन गई। और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा मैं जो अब यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती। तो इस तरह जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल के निकाह में आई, उनके वालिद भी इस तरह ईमान लेकर आए। जब जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान ले वो हर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई, तो बनुल मुस्तलिक के जो 100 घराने कैद होकर आए थे वो सब के सब जो है अल्लाह के रसूल के ससुराली बन गए। हमने इससे पिछले सबक के अंदर भी बतलाया था कि दामाद की एक बड़ी इज्जत होती थी, है ना, और इसी तरह पूरे ससुराल की इज्जत हुआ करती थी। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्तेदार बन गए, पूरा जो कबीला था बनुल मुस्तलिक के 100 घराने, 100 को 100 घराने अल्लाह के रसूल के जब रिश्तेदार बन गए तो सहाबा किराम को शर्म आई कि हम अल्लाह के रसूल के ससुरालियों को अपने कैद के अंदर रखें। हालांकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे चाहते वे इन सबको आज़ाद कर दो तो सहाबा किराम जब भी आज़ाद कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिल पे जोर पड़ता कि हमने जो है इतनी मेहनत करी, जंग के अंदर गए, जीत के लाए और अपनी जान जो है हथेली पर रखकर सब कुछ जो है मालिक गनीमत हासिल करके आए और फिर अल्लाह के रसूल आज़ाद करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब इनसे निकाह कर लिया तो सारे के सारे घराने अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार बन गए, ससुराली बन गए। तो उन्होंने शर्म महसूस करी कि हम इनको अपनी जो है गुलामी के अंदर रखें। तो तमाम सहाबा किराम ने सारे बनुल मुस्तलिक के 100 घरानों को आज़ाद कर दिया। तकरीबन 100 घरानों के अंदर 700 आदमी थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया उसकी एक बड़ी वजह 100 घरानों को आज़ाद कराना था। हमने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने जितनी भी शादियां करी हैं उसमें हर एक में एक अलग वजह है। एक वजह तो सब बीवियों के अंदर है कि दीन को ज्यादा से ज्यादा आम करना है, औरतों के मसाइल या अल्लाह के रसूल की जो घर की जिंदगी है अल्लाह के रसूल की बीवियां देखेंगी, वो सबको बतलाएंगी। ये तो वजह सारी बीवियों के अंदर आम थी, लेकिन हर बीवी के अंदर कोई ना कोई एक वजह अलग से ऐसी मिलेगी कि जो अल्लाह के रसूल ने जिस वजह से जो है उनसे शादी की। तो एक वजह हर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के रसूल का निकाह करने की ये थी कि 100 घराने आजाद हो गए। कहते कि बाद हजरात के जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से ज्यादा खुश नसीब हमने किसी को नहीं पाया कि खाली हर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से 700 आदमी आजाद हो गए। एक वजह। दूसरी वजह जो बनुल मुस्तलिक थे, तो अल्लाह के रसूल ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह कर लिया तो बनुल मुस्तलिक जो है अल्लाह के रसूल के लिए बहुत ज्यादा नरम हो गए। फिर उन्होंने कभी लड़ने की साजिश ही नहीं करी, या तो वो सारे मुसलमान हो गए या जो मुसलमान नहीं भी हुए तो उन्होंने भी जो अल्लाह के रसूल से लड़ने की कभी साजिश नहीं की। इसी तरह हमने पहले ही बतलाया था उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बयान के अंदर, उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है बनु मखजूम से थी और बनु मखजूम से ही जो है अबू जहल भी था, इकरिमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। और अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब अल्लाह के रसूल ने निकाह किया
तो ये बनु मखजूम वाले भी नरम हो गए, फिर उन्होंने भी कभी नहीं लड़े। खालिद वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल से लड़ने के लिए आए, गज़वे ओहद के अंदर आए, जब उम्मे सलीमा से निकाह नहीं हुआ, तो उम्मे सलीमा से अल्लाह के रसूल का निकाह हो गया, तो ये गज़वे खंदक के अंदर खालिद वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो उनके ससुराली बन गए, उनके रिश्तेदार बन गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करने की बहुत सारी वजह ये भी थी। तो क्योंकि इसको सियासी वजह भी है, ये जो गोया कि सियासत भी है, हमने बताया सियासत भी जो है दीन का एक हिस्सा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी सियासत किसी ने भी नहीं की, जिससे जो बहुत सारे निकाह, खासतौर 4 निकाह अल्लाह के रसूल ने वो सियासत की वजह से किए। जब अल्लाह के रसूल ने वो निकाह कर लिए तो उनके खानदान वाले अब नरम पड़ गए, फिर वो अल्लाह के रसूल से कभी भी जो है नहीं लड़े। उसमें हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं, तो हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है इस तरह अल्लाह के रसूल की बीवी बन गई। तो इनके पहले शौहर का नाम मुस्तफा बिन सफवान है। जब इनका निकाह हुआ है तो ये नबी के निकाह में 5 हिजरी के अंदर आई हैं। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल के निकाह में 5 हिजरी के अंदर आई, 627 ईस्वी के अंदर। हिजरी 5 थी और अंग्रेजी के हिसाब से 627 ईस्वी थी। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ तो 20 साल उम्र थी इनकी, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की 20 साल उम्र थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में तकरीबन 5 साल रही है। 5 हिजरी के अंदर आई और अल्लाह के रसूल का इंतकाल जो है 11 हिजरी के शुरू में हो गया। तो तकरीबन ये 5 साल के आसपास जो है अल्लाह के रसूल के निकाह के अंदर रही हैं। जो इनका इंतकाल हुआ है 50 हिजरी के अंदर हुआ और 670 ईस्वी के अंदर, 50 हिजरी 670 ईस्वी के अंदर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। उस वक्त जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत थी, उनके खिलाफत के अंदर जो है इनका इंतकाल हुआ। इनका जनाजा जो पड़ा है मरवान बिन हकम एक जो है आदमी गुजरा है, उसने जो है जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है जनाजा पढ़ाया और इन्होंने तकरीबन 65 साल की उम्र पाई। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने 65 साल की उम्र पाई और जन्नत बकी के अंदर दफन हुई मदीने में, क्योंकि अल्लाह के रसूल की अक्सर बीवियां जो है मदीने के अंदर ही दफन हुई हैं।